इंडिया मोबाइल कांग्रेस एंड टेलीकॉम सेक्टर में भारत की सफलता आत्मनिर्भर भारत के विजन को बताता है। तो आइए आज हम बात करते हैं आईएमसी की हाल में हो रही बैठक पे। तो आइए जानते हैं कि मोदी जी का क्या है इस पर राय। शासन और विकास के क्षेत्र में तकनीक को स्थापित किया और भारत को नवाचार और डिजिटल सशक्तिकरण का वैश्विक केंद्र बनाया। Ladies and gentlemen, let's have a resounding applause for the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. Please be taking your seats. Namaskar to everyone. And ladies and gentlemen, as we open IMC 2025, it is important to reflect on the transformative vision of our Honorable Prime Minister. As you're all aware, under the leadership of Prime Minister Modi, India today has the second largest telecom market in the world, with the fastest rollout of 5G anywhere in the world, and then being counted among the top 5 nations for its मैं निवेदन करती हूँ हमारे माननीय मंत्री जी आदरणीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कि एक विशेष स्मृति चिन्ह प्रधानमंत्री जी को भेंट कर आप उनका अभिवादन करें। देवी सज्जनों, ये विशेष स्मृति चिन्ह मेकिंग फॉर द वर्ल्ड की भावना से प्रेरित है। दीज आर मिनिएचर्स ऑफ indigenous technologies which are being presented to the Honorable Prime Minister sir, जिसमें 4G RAN उपकरण A6 और 5G एंटेना है। स्वदेशी तकनीकी उत्कृष्टता के नरेंद्र मोदी का बटन दबाकर इस फिल्म का अनावरण A करें। nation moving at digital speed, driven by innovation and ambition. Under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, every obstacle is being turned into an opportunity. 5G को रोल आउट किया। दुनिया में सबसे तेज गति से 5G रोल आउट करने वाला मेरा देश है और अब 6G की भी तैयारी कर रहे हैं। From the world's fastest 5G rollout to the development of Swadeshi telecom equipment, India is proving the strength of indigenous innovation. With WTSA 24, India established its leadership in shaping 6G standards and advancing research worldwide. In quantum, India is shaping the future of computing, sensing, and security. Semiconductors and manufacturing are powering a new wave, creating jobs, lifting exports, and making India central to global supply chains. In cybersecurity, India has come up with the most innovative and effective initiatives like Sanchar Sathi, with which over 6 lakh lost and stolen mobile handsets were recovered. Using the AI tool ASTR, over 82 lakh fraudulent numbers were disconnected so far. Using financial fraud risk indicator, financial frauds worth more than 150 crore rupees were prevented in the last 3 months. This is Atmanirbhar Bharat in action, with self-reliance reducing import burden and powering India's emergence as a telecom technology leader for the world. A new generation of entrepreneurs is carrying this spirit forward. From bold founders to transformative ventures, India's startups are not just scaling up, they are creating technology for the world. We are connecting 6.5 lakh villages with the most affordable price and realizing the dream of an inclusive India. This journey finds its stage at the India Mobile Congress. Here, India's vision comes alive, where 400 plus tech giants, 900 thought leaders, and 1,500 plus use cases converge across 40,000 square meters of innovation. From advanced connectivity to artificial intelligence, from semiconductors to next generation manufacturing, from vibrant startups to frontier research. Every stride of India's progress is reflected here. Our startup program Aspire is nurturing 500 plus of the next generation of tech leaders and thousands of enthusiasts. At IMC, India's spirit comes alive, dreaming bigger, pushing boundaries, shaping the future. This is India's moment. Let's innovate to transform.
और अब देखिए सज्जनों, इस फिल्म के माध्यम से भारत की बढ़ती हुई वैश्विक पहचान और प्रगति देखने के बाद अब आमंत्रित करते हैं इस पहचान और इस प्रगति के पीछे की दूरदृष्टि माननीय प्रधानमंत्री जी। फ्रेंड्स, आईएमसी का ये आयोजन अब सिर्फ मोबाइल या टेलीकॉम तक सीमित नहीं रहा है। सिर्फ कुछ वर्षों में आईएमसी का ये इवेंट एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल टेक्नोलॉजी फोरम बन गया है। साथियों, आईएमसी की ये सक्सेस स्टोरी कैसे लिखी गई, इसे किसने ड्राइव किया है? साथियों, इस सक्सेस स्टोरी को लिखा है भारत के टेक सेवी माइंडसेट ने। इसे लीड किया है हमारे युवाओं ने, भारत के टैलेंट ने। इसे गति दी है हमारे इनोवेटर्स ने, हमारे स्टार्टअप्स ने। और इसलिए ये मुमकिन हो पाया है क्योंकि आज सरकार देश की प्रतिभा और क्षमता के साथ पूरी ताकत से खड़ी है। टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, डिजिटल कम्युनिकेशंस इनोवेशन स्क्वायर, इन स्कीम के जरिए हम हमारे स्टार्टअप्स को फंड्स उपलब्ध करवा रहे हैं। 5G, 6G, एडवांस ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस और टेराहर्ट्ज, इन टेक्नोलॉजीज में टेस्ट बेड्स के लिए सरकार फाइनेंस कर रही है ताकि हमारे स्टार्टअप्स अपने प्रोडक्ट्स बिल्ड कर पाए। हम स्टार्टअप रेस और टेलीकॉम सेक्टर में भारत की सफलता आत्मनिर्भर भारत के विजन की ताकत को बताता है। आप याद करिए, मैंने जब मेक इन इंडिया की बात कही थी तो कुछ लोग कैसे इसका मजाक उड़ाते थे। शक संदेह में जीने वाले लोग कहते थे कि भारत टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीजें कैसे बनाएगा, क्योंकि उनके दौर में नई टेक्नोलॉजी को भारत तक आने में कई दशक लग जाते थे। देश ने उसका जवाब दिया। जो देश कभी 2G को लेकर स्ट्रगल करता था, आज उसी देश के लगभग हर जिले में 5G पहुंच चुका है। मैंने जब मेक इन इंडिया की बात कही थी तो कुछ लोग कैसे इसका मजाक उड़ाते थे। शक संदेह में जीने वाले लोग कहते थे कि भारत टेक्नोलॉजिकली एडवांस चीजें कैसे बनाएगा, क्योंकि उनके दौर में नई टेक्नोलॉजी को भारत तक आने में कई दशक लग जाते थे। भारत 6G विजन को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। साथियों, 10 सालों में भारत की टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन बहुत तेजी से आगे बढ़ी है और स्पीड और स्केल को मैच करने के लिए बहुत लंबे समय से एक मजबूत लीगल और मॉडर्न पॉलिसी फाउंडेशन की जरूरत महसूस हो रही थी। हमने इसके लिए टेलीकम्युनिकेशंस एक्ट बनाया। इसी कानून ने द इंडियन टेलीग्राफ एक्ट और द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट, उन दोनों को रिप्लेस किया। ये कानून तब के थे जब यहां बैठे हम आप जैसे किसी व्यक्ति का जन्म भी नहीं हुआ था।
और इसलिए पॉलिसी लेवल पर जरूरत थी कि हम 21वीं सदी की अप्रोच के हिसाब से एक नई व्यवस्था बनाएं, और हमने वही किया है। ये नया कानून रेगुलेटर नहीं है, बल्कि एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है। अब अप्रूवल्स आसान हुए हैं, राइट ऑफ वे परमिशन जल्दी मिलती है, इसका परिणाम भी दिख रहा है। फाइबर और टावर नेटवर्क का विस्तार तेजी से हो रहा है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ी है, इन्वेस्टमेंट को एनकरेज किया जा रहा है और उद्योगों को लॉन्ग टर्म प्लानिंग में सुविधा हुई है। साथियों, आज हम देश इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन 2040 की तुलना में 6 टाइम बढ़ चुका है। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में 28 टाइम्स और एक्सपोर्ट में 127 टाइम्स की वृद्धि हुई है। पिछले एक दशक में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने लाखों डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट की हैं। अभी हाल ही में एक बड़ी स्मार्टफोन कंपनी का डेटा सामने आया है। आज 45 भारतीय कंपनियां उस एक बड़ी कंपनी की सप्लाई चेन से जुड़ी हैं। इससे करीब 3.5 लाख रोजगार देश में पैदा हुए हैं। और ये केवल एक कंपनी का आंकड़ा नहीं है,